rewards and recognition policy has been institutionalized to reinforce and strengthen meritocracy, which is one of the themes of JSPL's core values, passion for people. This policy attempts to recognize the employee's contribution and conduct towards furthering organizational goals, vision and values through an appropriate mix of team and individual recognitions. Under Reward and Recognition Scheme, a set of performance awards have been rolled out to acknowledge meritocracy in the organization. Performance of the Year Award acts as a tool for recognizing the efforts and commitment of our employees who have achieved the highest level of performance aligning to the business objectives over the course of a year. I have been associated with JSPL organization since 2010. This organization has provided me a strong platform to grow professionally in my career. I was involved in developing of new angle and channel profile in the year 2012 and 13, and also we have achieved 46% growth in the productions. In the same year, we have achieved apex radius below 2 millimeters in angle 200 and angle 150. In higher thickness, it was the major challenge for us to achieve that, because we were able too much problems related to the quality, and we were not able to supply our angles finished product to our TLT customers. After that modification, in the past modification, the rolling schemes we have done, in the in-house development we have done in the angle sections, and we have achieved apex radius below 2 mm. I was very much inspired by Mr. R.K. Ajmeria through his ideas and views, and giving me a free hand to work. This would also have not been possible without my senior colleague and teammates who helped me at every step. After achieving this award, I felt very privileged and motivated to work more hard. And I convey this message to my subordinates, my teammates: always work hard and always work within sportsmanship and within team spirit. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम पुष्पल मुखर्जी है। मैं SMS 2 रायगढ़ जिंदल से हूँ। जब मैंने ये सुना कि मेरे को ये अवार्ड मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का टाइम था, और ये मेरे फैमिली और मेरे टीम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम है जब मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ उसको सिंप्लीफाई करूँ, उसको आसान करूँ, ताकि मेरे कॉलीग्स जो मेरे नीचे काम करते हैं उनको वो काम करने में आसानी हो। जो प्रॉब्लम डेली फेस करते हैं उससे वो बाहर आ सके और वो काम आसानी से हो सके। ये मेरा एटीट्यूड है कि मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि पॉजिटिव वे में सोचता रहता हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जाए और ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। Being a message I want to say, convey my colleagues, I want to share one. मैं अपने एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं काम करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैं अच्छा काम करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बॉस मेरे को अप्रिशिएट करें, पर मेरे को उस टाइम ऐसा अप्रिसिएशन मिलता नहीं था। पर मैं शायद गलत था उस टाइम, क्योंकि वो अगर मेरे को वो नहीं मिलता तो मैं आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। और मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और आगे अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स को कैसे वो काम को आसान करके दूँ, ताकि वो उनके काम करने में आसानी हो। Hello everyone, my name is Deepak Mehta. I am working in Kokon plant as Assistant Manager Mechanical. I am working with JSPL since 2005. I felt very happy and proud on being nominated as the Award of Executive of the Year and the Performance of the Year both. I am very grateful to JSPL management and especially to HR team who initiated such kind of programs where we can showcase our talents. As per me, the title of Executive of the Year and the Performance of the Year are the most prestigious titles, and it's a matter of pride to be selected for such wonderful titles. I would like to convey one message to my team that
no one can't get success with his own efforts only. There are many hands behind every success. So do your work with honesty and with team spirit. Success will definitely come to you. मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया और इसी कारण से मैं अपने अचीवमेंट्स को पूरा कर पाया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई जब इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मुझे एजुकेटिव ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि उनको ये अवार्ड मिल रहा है। मैंने घर पे बताया तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश हुई। वो बोली बेटा ये सब क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि ये इनकी हार्ड वर्किंग है, ये मतलब काम को बहुत मन लगा के करते हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। Executive of the Year is yet another novel initiative and has been launched with the aim to promote individual excellence amongst the executives. This intervention is an endeavor towards recognizing the efforts, commitment, and meritocracy of our employees. Through this scheme, JSPL rewards executives who have strived throughout the year and contributed largely to the organization in meeting its objectives. This scheme covers employees in the grade of junior manager and above. Myself Hemant Upadhyay. I work as a deputy manager in Blast Furnace 2. When I heard I got Executive of the Year award, it thrilled me because getting recognized for your work is always a fantastic experience. It motivates us and others to give a bit more towards your work. I could achieve this only because of unflinching support of my colleagues, my superiors and my family. Now based on my experience, I can surely tell this is the company and this is the place to work for. No effort gets unnoticed here and all your achievements are properly rewarded. Superior performance is achieved by involving people in refining the processes and maintaining the core values of sustainable development. The intent of the scheme is to foster total employee involvement, evolve an organized channel for the flow of ideas and innovation, to recognize employees for their creativity and motivate them to carry on their quest in contributing to the growth of the organization through teamwork, commitment, ownership, and responsibility for the work they are doing. Suggestion Scheme was launched in the year 2008, which is a brilliant concept to facilitate employees' participation in the management. The scheme over the years has gained much acceptability and has been appreciated by the employees. नमस्कार, मेरा नाम गौरव कपिल है। मैं पावर प्लांट में काम करता हूं। मैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं मैं जिंदल स्टील में काम करने के लिए। और यहां पर मैंने सजेशन दिया था एक, उसके लिए मेरे को अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। और मेरा सजेशन ये था कि प्लांट में जब भी कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कोई भी चीज़ गिफ्ट हो, यूनिफॉर्म हो या कुछ भी दिवाली ऑफर के गिफ्ट हो, वो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उसके लिए मैन पावर इंगेज रहता था पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट या HRD डिपार्टमेंट, वो लोग इंगेज रहते थे। और इसी टाइप से जिंदल स्टील पावर के जितने भी एम्प्लॉई हैं अबाउट 4000 वो लोग भी इंगेज रहते थे। तो इसके लिए कम से कम 3 दिन लग जाते थे कोई भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सजेशन दिया था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया जाए, सारे जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस आदमी को दिया जाए, लिस्ट दिया जाए, ताकि वो जिस आदमी को चीज़ मिलनी है डायरेक्ट उसको मिल जाएगी। उसके लिए ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना जो डिपार्टमेंट का या जो देने वाला डिपार्टमेंट है या जो लेने वाले लोग हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये अवार्ड मेरे को मिला, मेरे को काफ़ी खुशी हुई, मेरे डिपार्टमेंट को काफ़ी खुशी हुई और मेरे को अच्छा लगा और मेरी फैमिली को अच्छा लगा। मेरी फैमिली का इसमें बहुत योगदान था, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया मेरे को कि मैं ये सब कर सकूँ, ये सोच सकूँ। तो मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन कपिल है और मैं इनकी पत्नी हूँ। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे हस्बैंड को इस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी ये घर पर पूरा योगदान देते हैं, अपने घर काम में भी पूरा योगदान देते हैं और मुझे हमेशा इनके साथ रहने की खुशी है।
इनके काम की सफलता की खुशी है और हमेशा ही रहेगी। This is Anwar Raza, working in SMS3 mechanical caster at JSPL Raigad, and I really thankful for JSPL that we are here and we got this opportunity because of our some suggestion. That suggestion which was highly appreciated from our HOD Mr. Atul Dubey and from our team members. That's why we are here. Behind this there is some dedication, determination and team effort. Because of that we achieve this and we touch the milestone. Once I heard that I had been suggested for this nomination here for and it's highly appreciated, I was very astonished and surprised how come like this. Before putting this all, I would like to tell you regarding the suggestion scheme, why we are here. There was one shot blasting machine in beam welding plant. It was a scrap. When we suggest to our HOD, sir, we can bring this and we can erect it at SMS3 just for the issue of quality control, which is our motto of the JSPL members. For each and every members having a motto to ensure the quality. For that we brought this machine and erected our SMS3. For procuring this new machine, it would have been cost maybe 87 to 90 lakhs. So before that we procure that machine and erect it over there. Afterwards what happened, and we maintain the machine and it's working smoothly. Hello everybody, myself Ravi Shekhar Kumar. I am working in SMS2 JSPL Raigad, Chhattisgarh. As a mechanical engineer, I always try to make the system easier, feasible and sustainable based upon the parameter like cost, efficiency and sustainability. I have given one suggestion which is selected for implementation. This is really a proud moment for me and this was appreciated by my HOD and higher authority. This suggestion was regarding the filling of gear oil in gearboxes which is used for the drive of roller in combi caster in SMS2. This suggestion causes the reduction in time, cost and bring efficiency in the system. As a mechanical engineer, I would like to convey one message to my friend that be always positive in approach, never give up and update yourself. This will bring excellence in your output. I would like to thank JSPL for providing us such a good opportunity to work. Hello everyone, my name is Nand Kishore Tiwari. I am working in SMS3. I am working in JSPL for last 4 years. I have received a award for Par Excellence Award for giving suggestion. The suggestion was related to one of our critical applications, that is pipe conveyor, which is the lifeline of SMS3. There was a problem related to its gravity take-up pulley. Whenever we change the belt, the gravity take-up pulley distance was very short from the ground. Whenever we change the belt, after elongation of the belt, the take-up pulley just fall to the ground. So we decided and executed the job, and the length of the belt was gravity take-up was increased, and now we are not facing any problem related to elongation of the belt. And for this award, me and my family felt very happy when I came to know that this award has been awarded to me. And for this suggestion scheme, I must say I am thankful to the team, HR team and all, so for giving a platform for all the people and my colleagues to give their suggestions and their ideas, so that that can be implemented. I have not seen in, this type of thing in any other plant whichever I have worked in. For JSPL, the need of the hour is to implement and sustain change that would bring in process improvement and foster in building a congenial work environment for all. Hence, this led to the inception of SMILE. SMILE scheme was launched in 2008 with a view to inculcate sense of belonging and business excellence in the employees and develop the work culture of the organization,
and since then, the journey has been exultant. Smile is nothing but a motivational wheel which drives teamwork, voluntary involvement, creative thinking, and hence the overall development of the employees. The scheme provides a unique platform which propels the employees to showcase their inherent caliber and enables them with an opportunity to become an indispensable part of JSPL. हमारा प्रोजेक्ट क्विंचिंग हेडर के नोजल के जाम हो जाने की वजह से उसकी फ्लशिंग को सुविधाजनक बनाना था। इसके अंतर्गत हमने इस प्रोजेक्ट में काम करने के पहले हम जब हमारे क्विंचिंग हेडर की नोजल जाम हो जाने पर मैन पावर को कार के क्विंचिंग ट्रे की सहायता से 10 मीटर हाइट के क्विंचिंग हेडर तक पहुंचाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ प्रैक्टिस थी और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी थे और इसके लिए हमें पूरे ऑपरेशन को हैंग करके रखना पड़ता था। जब हम क्विंचिंग नोजल की फ्लशिंग करते थे तो मैन पावर को उस 10 मीटर की हाइट पर क्विंचिंग ट्रे की सहायता से पहुंचाकर अनसेफ कंडीशन में उसके 64 नंबर्स ऑफ ब्रांच के फ्लैंज के बोल्ट्स को खोलने पड़ते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। हमने इस प्रोजेक्ट में एक इनोवेटिव आइडिया यह लगाया कि हम ब्रांच हेडर को एक कॉमेडर की सहायता से जॉइंट करके उस 10 मीटर हाइट से उसे ग्राउंड लेवल पर ले आए और उसके एंड में गेट वॉल लगा दिए। अब हम जब फ्लशिंग करते हैं तो उसमें उसके फ्लैंज बोर्ड्स खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, केवल गेट वॉल को ऑपरेट कर लेते हैं, जिससे कि पूरे सिस्टम की फ्लशिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है और इससे मेन पावर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो चुका है, जिससे कि जो अनसेफ प्रैक्टिसेस थे वो पूरी तरह से दूर हो गई है। और इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान हमें हमारी पूरी स्माइल टीम के साथ साथ एचओडी के साथ साथ पूरे अपने कलीग्स का पूरा सहयोग मिला है, जिसकी सहायता से उन्हीं की वजह से हमें स्माइल प्रोजेक्ट में जिंदल की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारा स्माइल प्रोजेक्ट डिवाइड शेयर के ऊपर फोकस्ड है। मिल से जो मेटल रोल होकर के आता है उसको हम डिवाइड शेयर से मल्टीपल लेंथ में कट करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड शेयर में किसी माल फंक्शन की वजह से मिल में कोबल हो जाता है उसे क्लियर करने में हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। इससे प्रोडक्शन लॉस तो होता ही है, इसके साथ साथ बहुत अनसेफ कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली जनवरी 2012 में हमें फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई। चलते चलते अचानक से डिवाइड शेयर ने कुछ माल फंक्शन किया और मिल में कोबल हो गया। फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई, बार बार रिपीट होने लगी। हमने अपने एंड पे सब कुछ चेक किया, मोटर एंड पे, ड्राइव एंड पे, पीएलसी साइड में, लेकिन हमें कुछ इसका रीज़न नहीं मिला। जब रीज़न कुछ नहीं मिला तो हमें सॉल्यूशन भी इसका कुछ नहीं दे पाए। तो इस तरह से हम बहुत परेशान हो गए। प्रोडक्शन का पूरा प्रेशर हमारे ऊपर था, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कैसे करें। फिर हमने अपने एचओडी श्री आर के अजमेरा जी से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ाया और हमें समझाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर उनके गाइडेंस में हमने एक टीम बनाई और इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अब हमें ये जानना था कि इसका प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, तो उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट किए, उनको रिकॉर्डिंग में डाला। तो उससे हमें ये पता चला कि डिवाइड शेयर का जो ब्लेड का पोजीशन है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जा रहा है और इस पोजीशन फीडबैक के लिए जो एनकोडर लगा है वो माल फंक्शन कर रहा है। फिर हमने उस एनकोडर को चेंज कर दिया, लेकिन इससे भी ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व नहीं हुई। कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम फिर रिपीट होने लगी। तो हमने इसका वाई एनालिसिस किया कि ये बार बार एनकोडर माल फंक्शन क्यों कर रहा है। तो उससे ये रीज़न निकल के सामने आया कि जो एनकोडर लगा हुआ है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है और इस पर्पज़ के लिए ये बना नहीं है, इसमें माल फंक्शन करने के पूरे चांस हैं। तो हमने एक नया रबस्ट एनकोडर, एक हैवी ड्यूटी एनकोडर सेलेक्ट किया, उसको परचेज़ किया। उसका माउंटिंग थोड़ा डिफरेंट था, नया माउंटिंग बनाया। पीएलसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने थे, वो मॉडिफिकेशंस करे। और उसके बाद जब हमने उसका ट्रायल किया तो देखा हमने काफ़ी अच्छा हमें उसका रेस्पॉन्स मिला और उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट के कॉस्ट सिर्फ लगभग 26,000 के आसपास आई थी, लेकिन इससे जो हमें बेनिफिट हुआ है वो लगभग 8 लाख पर मंथ का बेनिफिट हमें इस प्रोजेक्ट से मिला है। इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई है मिस्टर राजेश चौधरी ने, जिन्होंने एनकोडर को बड़ी कुशलतापूर्वक स्किल के साथ में माउंट किया है। मिस्टर अमिताभ तिवारी ने नया माउंटिंग अरेंजमेंट बनाया, नया शाफ्ट डिज़ाइन किया। मिस्टर तुहिन बनर्जी ने पीएलसी में मॉडिफिकेशंस किए। मिस्टर सुमित काला ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस तरह से हमने एक टीम के रूप में काम करते हुए लगभग 4 महीने में इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दिया। उसके बाद जब से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल रिपीट नहीं हुई। इसके लिए हमें अपने एचओडी से और अपने ऑपरेशन की टीम से काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला है। पूरे रायगढ़ यूनिट में इस स्माइल कंपटीशन में लगभग 200 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। जब ये अनाउंस हुआ कि हमारी टीम इसमें फ़र्स्ट आई है तो हमें बहुत खुशी हुई
नेचुरली ये बहुत गर्व भी महसूस हुआ हमें। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमें हमारे किसी काम को एक रिवार्ड के रूप में सराहा जाता है, और ये इस प्रोजेक्ट की सफलता एक हमारे पूरे MLSM टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे MLSM के जितने मेंबर्स हैं सब इससे बहुत उत्साहित हुए हैं और नए सिरे से एक नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय हम उस विश्वास को देना चाहेंगे जो हमारे HOD श्री RK अजमेरा जी ने हमारे ऊपर जताया और समय समय पे हमें सही गाइडेंस दी, जिसके चलते हमने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। मैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी कलीग्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहनत के साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे और एक अच्छा गाइडेंस हमें मिलेगा तो हम किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो, वेलकम टू पावर प्लांट यूट्यूब फेज़ 3। मैं संजीव कुमार यहाँ पर आपको हमारे स्माइल प्रोजेक्ट और स्माइल टीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारा स्माइल प्रोजेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्क्रैपर चेन कन्वेयर फॉर वेस्ट रिकवरी बॉयलर्स। हमारे टीम के लीडर है मिस्टर राजेश मित्तल सर। हमारे टीम के मेंबर्स है मिस्टर मंजीत कुमार, मिस्टर रवि कुमार, मिस्टर अशोक कुमार एंड मिस्टर कन्हैया मौर्य जी, और मैं संजीव कुमार। पावर प्लांट यूट्यूब फेज़ 3 में 2x25 मेगावाट के स्टीम ड्रिवन टर्बाइंस हैं और 457 टन पर आवर स्टीम जनरेशन कैपेसिटी के वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स हैं। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स में स्टीम जनरेशन DRI के वेस्ट फ्लू गैस से होता है। 500 टन पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाले DRI फील्ड में अप्रॉक्सीमेट 700 to 750 टन कोल कंज्यूम होता है। इस कोल से अप्रॉक्सीमेट 200 टन एस जनरेट होता है। ये एस भी फ्लू गैस के साथ में हमारे बॉयलर में इंटर करता है। इस एस का 80% पार्ट जो है इकोनोमाइजर और ESP हॉपर्स में कलेक्ट होता है। बाकी रेस्ट 20% एस जो है बॉयलर के बॉटम एस हॉपर में कलेक्ट होते हैं। पहले हमारा सिस्टम था कि हम बॉयलर के एस हॉपर को खाली करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ करते थे। एक 6 इंच की लाइन मेन एस लाइन से कनेक्ट होती थी और वैक्यूम पंप उस लाइन वैक्यूम क्रिएट करके एस को इवैक्यूएट किया करता था। लेकिन चूंकि बॉटम एस हॉपर है, यहाँ पर एस पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। इवन कभी क्लिंकर का फॉर्मेशन होने से साइज़ काफ़ी बल्कि हो जाया करता था, तो यहाँ से एस को इवैक्यूएशन करना हमको काफ़ी प्रॉब्लम जाता था। एस इवैक्यूएशन नहीं हो पाने की वजह से हॉपर धीरे धीरे फिलअप हो जाता था और फिलअप होने की वजह से फ्लू गैस का पाथ रेस्ट्रिक्ट होने लगता था। फ्लू गैस का पाथ रेस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से हमारा फ्लू गैस वाटर वॉल में इरोजन चालू करता था, जिसकी वजह से बॉयलर में ट्यूब लीकेज होता था और बॉयलर ब्रेकडाउन में चला जाता था। अब बॉयलर ब्रेकडाउन में जाने की वजह से हमको किलन भी शटडाउन लेना पड़ता था, जिससे किलन का भी प्रोडक्शन लॉस होता था। इसके अलावा हमारा ESP का एफिशिएंसी भी काफ़ी डिटेरियोरेट होता था ड्यू टू हाई एस लोड ऑन ESP। हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने काफ़ी सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हमने सोच विचार करके 2-3 हमने विकल्प निकाले, 2-3 हमने कंक्लूजन निकाले, जिसमें से एक ये था कि हॉपर को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम ड्रेन कर दें। लेकिन ये चीज़ सेफ्टी फैक्टर से पॉसिबल नहीं लगा हमको, क्योंकि एस ड्रेन करना मीन्स गर्म एस अगर रोड में फैलता है तो उससे कोई भी हार्म हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। सेकंड, हमने ऑप्शन लिया कि जो एस इवैक्यूएशन लाइन अभी लगी हुई है उस लाइन का साइज़ बढ़ा दिया जाए, वैक्यूम की कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए। लेकिन क्लिंकर का कोई साइज़ नहीं था, वो छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। उस समय भी यही समस्या आ रही थी कि हम एस कैसे खाली करें। थर्ड ऑप्शन हमने अडॉप्ट किया कि एक वेट स्क्रैपर लगा दिया जाए, एक स्क्रैपर चेन कन्वेयर लगा दिया जाए जो कंटिन्यूस एस को हॉपर से रिमूव करता रहे। सब सारे दिशाओं में सोचने के बाद में हमको फाइनली ये स्क्रैपर चेन कन्वेयर वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम ये वेट स्क्रैपर जो है बॉयलर बॉटम एस हॉपर में इंस्टॉल करेंगे। फाइनली श्री राजेश मित्तल सर के गाइडेंस में और पूरे पावर प्लांट की टीम के सहयोग से हमने बॉयलर बॉटम में ये वेट स्क्रैपर चेन कन्वेयर इंस्टॉल कर दिया। इस वेट स्क्रैपर चेन कन्वेयर का बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। पहला बेनिफिट तो ये है कि हमने अभी तक इसको लगाने के बाद से इरोजन की वजह से ट्यूब लीकेज का प्रॉब्लम हमने नहीं फेस किया। दूसरा, ESP की एफिशिएंसी जो मैंने पहले कहा था कि डिटोरिएट हो रहा था, वो प्रॉब्लम हमने कभी फेस नहीं किया। तीसरा, सेफ्टी रीजन से जनरली क्या होता था कि जब भी हॉपर चोक होता था हमको शटडाउन में हॉपर खाली करना पड़ता था, हॉपर खोल के। तो
हॉपर खोलने की वजह से एस जो है काफ़ी दूर तक फ्लो करता था, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे, वो भी मिनिमाइज़ हो गया। तो फाइनली इस पेपर से हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और इस पेपर जो हमने सबसे पहले WHRB 7 में लगाया था, बाद में मैनेजमेंट प्लीज़ होके इसी पेपर को बाकी WHRB 8, 9 एंड 10 में भी इंस्टॉल करने का परमिशन दे दिया। और इस पेपर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको अशोक जी बताएंगे। धन्यवाद। ये बॉयलर्स के हॉपर हैं, इसमें जो फ्लाई ऐश आता था, पहले जो सिस्टम लगा हुआ था उसको निकालने में उस सिस्टम से बहुत दिक्कत होता था। ये हमारा प्रोजेक्ट आया एक तो वेट स्क्रैपर जो लगा, जिसे निकालने में बहुत आसानी होता है। इसमें पानी भरा रहता है और चैन है, बार है और सेफ्टी के लिए ऊपर न्यूमेटिक गेट लगे हैं, जिससे कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होता है। और शट डाउन के टाइम में जो भी एक्रेशन निकालने में सेफ्टी के लिए बहुत दिक्कत होता था, अब वो दिक्कत नहीं आती है। ये स्क्रैपर जो लगा उससे हमको बहुत आसानी से कोई भी काम हो जाता है, सब पूरा ऐसे बाहर निकल जाता है, शट डाउन में भी दिक्कत नहीं होता है। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा स्माइल के लिए सेलेक्ट हुआ, उसके लिए हमें बहुत खुशी हुआ और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी हुआ। Executive of the Month was institutionalized with an objective to recognize those employees who have made significant contributions in areas related to the improvement of operation, customer satisfaction, etc. during the financial year. Not only this, it is also meant to identify high potential employees across the plant who exhibit exceptional leadership qualities, teamwork, and are always geared up for facing unforeseen challenges. This policy covers employees in the grade junior manager and above, excluding HODs, deputy HODs and DGM and above level employees. Myself Hitesh Dutt Sharma, working as assistant manager in Power Plant 1 EPS section. I am very thankful to my HOD and my seniors for recognizing my efforts and rewarding me this award. It was during September month. I was working as shift in charge in night shift, and I suddenly observed total blackout in the department, and based on my previous experiences and attentiveness experience, I suddenly observed the fault was from the main line, and the complete blackout was occurred because of our house load was tripped, and suddenly I took my action and resumed the power supply from MRSS 1, and making the supply resumed within 10 minutes, and the whole plant was reinstated within 20-25 minutes. I am very thankful for my sectional head Mr. Chandranshu Singh, who recognized my effort and rewarded me so early, and also to my HOD. And I would like to convey the employees who are working in this organization that they should feel this organization as their mother, so that like we nourish and our mother and take care of it, we should also take care of our organization. Thanks. My name is Saikat Martin. I am working in power plant, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट भी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से किया है, और मुझे इस कंपनी से जुड़े हुए 14 ईयर्स हो चुके हैं, और मैंने हर एक दिन इस कंपनी में कुछ एक नया चीज़ और एक नया अनुभव किया है, और बहुत कुछ मुझे यहाँ सीखने मिला।
क्योंकि और मुझे ये पता भी नहीं चला कि मुझे ये 14 साल कैसे बीत गए इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी का इन्वायरमेंट, फैसिलिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सीखने के लिए मिलता है वो शायद मुझे किसी और कंपनी में शायद ना मिल सके। और मैं अपने सीनियर्स और अपने HOD सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये रिवार्ड्स के लिए मुझे चुने उन्होंने। और ये रिवार्ड्स इसीलिए चुना गया है कि हमारा जो ओवरऑलिंग का शेड्यूल होता है, मेजर ओवरऑलिंग का, वो 15 डेज़ का होता है, वो स्टैंडर्ड शेड्यूल होता है और उसको हमने 12 डेज़ में अचीव करके दिखाया और इसीलिए उन्होंने मुझे इस रिवार्ड्स के लिए रिकॉग्नाइज़ किया और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। और ये रिवार्ड्स मैं अपनी फैमिली और अपनी टीम दोनों को डेडिकेटेड करता हूँ, क्योंकि उनके बिना सपोर्ट्स के मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो जब मैंने उनको ये मैसेज दिया कि ये रिवार्ड्स मुझे मिला है और मैं चुना गया हूँ इसके लिए, तो वो बहुत ही एज ए प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बीइंग ए रोल मॉडल मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरा जो एटीट्यूड है बहुत ही पॉजिटिव है और मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, पॉजिटिव वे में लेता हूँ। कोई भी काम को मैं अगर पॉजिटिव वे में लेता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये काम होगा या नहीं होगा। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के पॉजिटिव वे में लेके काम करता हूँ तो मुझे हमेशा सक्सेस मिलती है। और अपना एज ए मैसेज मैं अपने कलीग्स और अपने टीम्स को यही देना चाहूँगा कि अपने जो वर्क प्लेस में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए कि कोई भी काम करने जाएं तो किसी को डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो, ताकि कोई भी काम आसानी से हो जाए। और हमारा JSPL का कोर वैल्यू में पॉसिबल वर्ड है, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और बहुत अच्छा पॉसिबल वर्ड जो आया है उसमें से मैं पैशन, ओनरशिप और लॉयल्टी लेना चाहूँगा, ताकि ये तीनों चीज़ को अगर अपन कोर मान के चलेंगे तो कोई भी चीज़ हमें ईज़िली मिल जाएगी और हमें अनसक्सेस को देखना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं जी देवपाल, मैं RUBM ऑपरेशन विभाग में कार्यरत हूँ एज ए शिफ्ट मैनेजर। मैंने इस वर्ष 2000 अक्टूबर में मेरा चयन एग्जीक्यूटिव ऑफ द मंथ के लिए किया गया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेहनत की बहुत कद्र होती है और ईमानदारी और एक अच्छे उद्देश्य के साथ कार्य करने से आदमी को सफलता ज़रूर मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है जो मैं आज आपके सामने हूँ और मैं इसके लिए अपने HOD का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रतिभा और मेरे कार्य को सराहा और मुझे इस वर्ष मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए एग्जीक्यूटिव चुना गया। और एज ए मेटलर्जी इंजीनियर मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और साथियों का सहयोग है और HOD का प्रोत्साहन है, जिससे आप अपने प्रतिभा को और ज़्यादा उजागर कर एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। मैं पिछले 7 साल से JSPL से जुड़ा हूँ और JSPL के एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी सारी बातें हैं जो आप अपनी प्रतिभा को यूज़ कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका जो अंदर का इंजीनियर है उसे आप जगा सकते हैं और अपनी प्रतिभा का संपूर्ण जो यूज़ करना है आप यूज़ करके कंपनी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और इसके लिए मैं अपने HOD और अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Hello everybody, myself is Pawan Thakur. I joined this organization 3 years back and since last 3 years I am getting this prestigious award, that is Executive of the Month, every year. It's my dedication and sincerity that led to me to the success. I am thankful to my HOD who is recognizing me every year based on my performance, and I am thankful to management who have launched such kind of initiative to motivate their employees. Being a role model, as I am getting this award every year, I have become a role model for my department, for my colleagues, and my colleagues also getting motivated seeing my performance, my achievements. And recently one of my colleague, one of a junior who is working under me, he also got one of the prestigious award, that is GEM. My family has been a great support for me. She gives me support all the times, and she felt very proud of me and very delighted when she heard about this prestigious award to me.
gone the extra mile is a self-explanatory phrase which emphasizes that we at JSPL recognize even the little steps taken by the employees, which can make an enormous difference in the years to come. The main objective behind this award category is to recognize employees, including workers up to grade junior executive, who have shown outstanding commitment towards work, excellence in work process improvement, and in building a congenial work environment in and around them. मेरा नाम दिनेश चंद्र तिवारी है। मैं JSPL रायगढ़ में सीनियर सुरक्षाकर्मी के पद पर विगत 8 वर्षों से कार्यरत हूँ। मुझे मेरे विभाग द्वारा जैसे ही पता चला कि मेरे को जेएम ऑफ JSPL के लिए चुना गया, मुझे अत्यंत ही खुशी हुई। मुझे मेरे HOD द्वारा बुलाया गया और मुझे शाबाशी दिया गया कि आपको जेएम ऑफ JSPL के लिए चुना गया है। मुझे बहुत ही यह जानकर खुशी हुई। मैंने तुरंत ही अपने फैमिली को फ़ोन किया और बताया कि मुझे जेएम JSPL के लिए चुना गया है। हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत ही कुछ कर रही है और हमें भी अपनी कंपनी के लिए बहुत ही कुछ करना चाहिए, जिससे हमारी कंपनी को कभी भी नुकसान ना हो और हमें अपनी कंपनी की हमेशा जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। हमारे इस प्रोत्साहन के लिए हमारी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमारी सफलता के लिए भी हमारी फैमिली ही बहुत ही बड़ा सहयोग में है। मेरा नाम नीता तिवारी है और मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि इन्हें जेएम JSPL के लिए चुना गया। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने भी अपने परिवार को, फैमिली को, सभी को बताया। सभी बहुत खुश हुए और मैं इनसे यही कहती हूँ कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए और आपको इस जेएम JSPL के लिए चुना जाए आगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरा नाम कामता पटेल है। मैं पिछले 5 साल से EPS क्रेन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ JSPL रायगढ़ में। मुझे जब पता चला जेएम ऑफ JSPL के लिए चुना गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने घर में भी बताया, उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि आपको जेएम ऑफ JSPL के लिए चुना गया है और बच्चे भी खुश हुए। जब मेरी फ़ोटो लगी तो बच्चे स्कूल जाते टाइम दिखाते थे अपने दोस्तों को। उन्होंने भी गर्व महसूस किया मेरे कारण कि मेरे पापा का फ़ोटो लगा हुआ है। और क्रेन में होने वाले ब्रेकडाउन्स और जो छोटे मोटे एक्सीडेंट हैं उस पे हमने बहुत सारे इम्प्रूव किए और कैसे कम किया जाए इसको, इस बारे में हमने सोचे। हमारे HOD जो V श्याम प्रसाद जी थे, उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे उत्साहित किया कि आप ये कर सकते हो। हमने बहुत सारे लिमिट्स और अलग अलग पावर सोर्स, जिससे कि क्रेन में आने वाले ब्रेकडाउन्स कम हो, इस बारे में काम किए और मुझे अच्छा लगा कि मेरे काम को सराहा भी गया जेएम ऑफ JSPL के रूप में। और मैं आगे भी JSPL के लिए इस तरह से काम करना चाहूँगा और करता रहूँगा। मैं धर्मवीर सिंह राठौर, मैं JSPL में पिछले 12 वर्षों से EPS एम्बासडर में कार्य कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे जेएम ऑफ JSPL के लिए चुना गया, मेरा नाम नॉमिनेट किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत गर्व है कि JSPL के कार्य में मेरी भी भागीदारी है और JSPL द्वारा जेएम के माध्यम से मेरे कार्य को सराहा गया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ का। जैसे ही मेरी फैमिली को इसके बारे में पता चला, उनको भी बहुत खुशी हुई। कोई भी अवार्ड या सम्मान मिलता है तो हमें तो खुशी होती है, इसके साथ हमारे पूरी परिवार, पूरी फैमिली को खुशी महसूस होती है। उनका भी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। कोई भी कार्य को सच्ची ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मैं अपने कलीग्स, दोस्तों को यही एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको सच्ची ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करोगे तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। हेलो, मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं JSPL ब्लास्ट फर्नेस में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ और जब मेरे बॉस ने मेरे को अपने रूम में बुला कर बोला कि तुमको जेएम के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो सुन के बहुत खुशी हुई। और मैंने जब अपने फैमिली को, अपने वाइफ को ये चीज़ बताया तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन किया कि ये जेएम ऑफ JSPL होता क्या है। तो मैंने उनको बताया जेएम गॉन एक्स्ट्रा माइल है, जो प्लांट में अच्छे काम करने से, अच्छा कुछ करके दिखाने से ये हमको दिया जाता है। इसके लिए मैं अपने साथियों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लांट में कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कीजिए, जो आपके प्लांट के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए सब फायदेमंद हो, वो चीज़ सही तरीके से होना चाहिए। मेरा नाम अशलेंदर सिंह है। मैं LMB गैरेज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ और
मुझे बहुत खुशी हुई जबकि हमको नॉमिनेट किया गया JSPL के लिए। तो अपने फैमिली में उसको शेयर किया, बताया, सबको बहुत खुशी हुई सुन के। फिर हमसे पूछे वो लोग क्या होता है ये JSPL, उसके बारे में मैं बताया कि अच्छा काम करने में ये अवार्ड मिलता है। तो उन्होंने पूरे अपने परिवार में शेयर किए, अच्छा लगा, उससे सब लोग संतुष्ट हैं। हमारे 20 साल से हम कार्यरत हैं, इसलिए हम अपना पूरा परिवार का देखभाल सब अच्छा से करते हैं और यहाँ काम करके हमारे परिवार सब लोग संतुष्ट हैं और आगे ऐसा काम करते रहेंगे ईमानदारी से, अच्छा से। उसके लिए हम पूरा वचनबद्ध हैं और अपने सारे साथियों को भी अच्छा काम करने का सलाह देते हैं, अच्छा काम करें, अच्छा ड्यूटी करें। तो इसके लिए अपने सबको धन्यवाद देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार पंडित है। मैं JSPL रायगढ़ में MLSM ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 4 वर्षों से काम कर रहा हूं। मुझे जब इस अवार्ड के बारे में मेरे HOD ने बताया तो मुझे बहुत ही खुश हुआ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं जब इस अवार्ड के बारे में अपने फैमिली को भी बताया तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई और वो भी अपने को गर्व महसूस कर रहे थे। और इस अवार्ड के बारे में अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि कोई भी काम सही सोच और सही सुरक्षा और सही पूरी मेहनत से, लगन के साथ करने से हमेशा कोई भी काम सफलतापूर्वक पूरा होता है। इससे अपना और फैमिली और कंपनी को बहुत ही आगे से सफलता मिलती है। Hello everyone, I am Anup Kumar. I am working in Jindal Steel and Power Limited in MLSM department, that is medium light structure mill. मैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से 2011 से एसोसिएट हूँ और अभी मैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। एट फर्स्ट जब मुझे ये बताया गया कि तुम्हें जेम्स ऑफ JSPL के लिए चुना गया है, देन आई वॉज शॉक्ड कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, because recently I confirmed as a JET, as a junior engineer trainee in May 2012, and I selected for James of JSPL in January 2013. So I was shocked, but I was internally I was very happy. Yeah, I got great achievement. So this was great for me, and in my department everybody are shocked and they are also very happy. Yeah, he did good job. So I really want to thanks my HOD, my family, जिनके सपोर्ट से मुझे ये अचीवमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली आई वांट टू थैंक्स मिस्टर आशीष जैन हु इज़ माय HOD, जिन्होंने हर वक्त मेरे मॉरल सपोर्ट को इंक्रीज़ किया, हर वक्त मुझे हर काम एक अच्छे तरीके से करने को सिखाया। तो जिस वजह से मुझे आज ये अचीवमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज ग्रेट फॉर मी। और मैं अपने कलीग्स को सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी अपना जॉब करते हैं, वो सेफ्टी के साथ और ऑनेस्टली कीजिए एंड बी लॉयल विथ योर जॉब, बिकॉज मे बी नॉट टुडे बट टुमारो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। थैंक यू। मैं सत्येंद्र सिंह, हेडिंग स्टील मेल्टिंग शॉप। इस साल जो हम लोगों को जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का अवार्ड सजेशन और स्माइल में मिला है, ये बहुत ही खुशी की बात है और ये बेसिकली हमारे टीम के सभी मेंबरों का प्रोत्साहन है और सभी मेंबरों का भागीदारी है, जिसके कारण हम लोगों ने इस आयाम को कायम किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह पार्टिसिपेशन करेंगे और मैक्सिमम अवार्ड जीतेंगे। आई एम N. Rajkumar, Business Unit Head of Flat Products, Jindal Raigad. I am given to understand that my team has done it once again by giving maximum number of participation in the SMILE program. They have put in a lot of sweat in this. They have put in a lot of time and effort, and I am really happy to know this, and I am sure and I will commit to this great organization that in the coming days, in the coming years, the participation is more and more from plate mill. As Thomas Edison said, the success is a combination of 1% inspiration and 99% precipitation. Whatever the sweat made by my team,
I will see that sweat does not go as a waste. The suggestions and the improvement programs given by our team, they are successfully, I will see that they are successfully implemented in my team for the better welfare of this great organization. At JSPL, reward and recognition policy has been rolled out as a comprehensively structured policy, as a result of which we are no way behind in appreciating and recognizing the hard work and sincere efforts put in by our employees in making us one of the fastest growing steel companies and a consistent performer of its kind.